appearing in the exam also, these steps would be helpful to you. First thing that you should keep in mind is कि you have to read it completely. I scored 195 marks in my tier 2 exam back in 2018. Pacify और appease होते हैं वो usually use होते हैं किसी इंसान के context में जो angry है. Hi everybody, I am Aditi, and as you can see, this is a cross test I have taken from the CGL previous year paper, right? And we'll be solving this. Also, I'll be giving you some tips that you should keep in mind when solving a mock test, or obviously when you're appearing in the exam also, these tips would be helpful to you. Let's begin. First of all, whenever you see a close test, right, or a close test or a passage, for that matter, also the para jumbles, first thing that you should keep in mind is कि you have to read it completely, then you will see the options. First read, no matter how much time, you have to be quick enough to read it as fastly as you can, and then you will be reading the options so that the chances of your silly mistakes will be very low, right? This is what you should keep in mind. This is what I did. I scored 195 marks in my tier 2 exam back in 2018. Our exam was in 2021. So let's begin. What should be the procedure? First, I'll read it completely. What every tourist must take back from Bhutan is pure honey, especially putka, antibiotic honey produced dash Malipona bees, stingless bees, a breed found in protected areas dash 700 to 1500 meters above sea level. Due dash their small size, they can get larger nutrients dash regular honeybees. It has a tangy sour taste and can dash your sore throat in a matter of minutes. This is the first thing which I did. I read it, and also I tried to understand it completely in one reading. If you are not able to do it, just read it once again and in a very quick pace, right? Next we'll go through the options. Why I am doing that is so that आपके जो silly mistakes के chances हैं they minimize, right? Of, through, by, with, midst, between, after, and among, for, at, to, of, then, than, though, and, pacify, appease, soothe, and calm. Next thing that you will be doing here is कि you need to know the meaning of all the words. First, this would be my advice to you, that at least when you are appearing for mocks, what you should do is, while you're appearing for mocks, the thing that you need to do is you need to know the meaning of every word and also its usage, right? And now I am very sure everybody knows that you cannot learn all the words, but what you need to do is the mock or the previous year papers, everything. You should consider English as a language rather than a subject, which is what this paper is based on. So I'll be covering this as much as I can. Then you should also keep this in mind, right? Now we'll go question by question. What every tourist must take back from Bhutan is pure honey. सारे टूरिस्ट जो भूटान आते हैं उनको वहाँ से क्या ले जाना चाहिए? प्योर हनी. स्पेशली कौन सा? जिसका नाम है पुटका. एंटीबायोटिक हनी है, प्रोड्यूस डैश बीज, तो इसको बीज बनाती हैं, राइट? बीज बनाती हैं, तो बाय होगा. प्रोड्यूस ऑफ बीज के बीज से बना हुआ है. थ्रू का मतलब जो एग्जैक्टली होता है वो हमें यहाँ पे जैसे हम बोलते थे थ्रू अ टनल, थ्रू व्हाटएवर, तो थ्रू का जो मतलब होता है बिगनिंग से एंड तक किसी चीज़ के. यहाँ पर हम ये देखेंगे कि बिगनिंग टू एंड, ये मतलब क्या होता है? थ्रू का, राइट? तो क्या ऐसा कोई भी आंसर थ्रू बीज से, अब हम हिंदी में इसको करेंगे ना तो सीधे से कर देते हैं, तो बीज से बनता है. अब बीज से नहीं बनता ना, बीज बनाती हैं, तो बीज बाय आएगा. गॉट इट? अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज, एक ऐसी ब्रीड बीज की जो प्रोटेक्टेड एरियाज में मिलती है. कहाँ पर? 700 से 1500 मीटर अबव सी लेवल, राइट? अब सबके मतलब पता होना चाहिए. मिड्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बीच में, मिडिल ऑफ समथिंग लाइक दैट. आफ्टर होता है बाद में, बिटवीन बीच में, ठीक है. एंड अमंग का क्या मतलब होता है? हमें अच्छे से पता है. अमंग होता है आप किसी से घिरे हुए हो, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि अमंग फेलो एसोस लाइक दैट. अमंग का ये भी मतलब होता है कि जैसे कि आप, अमंग का मतलब बेसिकली जो है वो पीपल और थिंग्स के बीच में बात. अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट? मतलब यू शुड, अब मैं बता रही हूँ तो आपको पता होनी चाहिए. और वैसे भी अमंग का मतलब होता है बेसिकली पीपल या फिर थिंग्स के बीच की बात हो रही है.
यहाँ पर हम क्या बात करें, दो सेम नंबर्स की बात करें, इनके बीच में अबव सी लेवल्स 700 to 1500 अबव सी लेवल, तो यहाँ पर क्या आएगा बिटवीन। ड्यू डैश देयर स्मॉल साइज, अब ये तो हम काफ़ी बार सुनते हैं, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज होगा, ये तो ऑब्वियसली उनके स्मॉल साइज की वजह से दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स डैश रेगुलर हनी बीज के कंपैरिजन में। अब ये आप, क्योंकि अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, इसको ऑलमोस्ट दूसरी बार पढ़ रहे हैं या तीसरी बार पढ़ रहे होंगे, अगर आपको पहली बार समझ नहीं आएगा तो ये वाले क्वेश्चंस करना बहुत ईजी हो जाएगा, कि आपको पता है जब आप ये लाइन पढ़ रहे हो तो ये रेगुलर हनी बी से आगे कंपैरिजन होने वाला है, तो यहाँ पर आएगा देन इट हैज़ अ टैंगी सावर टेस्ट। अब टैंगी और सावर का मतलब एक ही होता है, जैसे कि लेमन जैसा टेस्ट, राइट। टैंगी क्या होता है, थोड़ा सा सिट्रिक टेस्ट जो होता है उसको बोलते हैं टैंगी या फिर सावर टेस्ट। एंड कैन पैसिफाई, अपीज, सूद और काम योर सोर थ्रोट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, मतलब कुछ ही मिनट्स में आपकी जो सोर का मतलब क्या होता है, दर्द हो रहा है जिसमें, ऐसी थ्रोट को वो सही कर सकती है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसने ज़्यादा मेहनत करी है, उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। इन चारों ही वर्ड्स का मतलब किसी चीज़ को शांत करना है, ये मान रहे हैं, पर जो पैसिफाई और अपीज होते हैं वो यूजुअली यूज़ होते हैं किसी इंसान के कॉन्टेक्स्ट में, जो एंग्री है, गुस्से में, उसको हम शांत कर रहे हैं, राइट। काम का तो मतलब होता है, अब काम थ्रोट तो वैसे नहीं हो सकती, समझ लो, काम का मतलब भी शांत होता है, जो शांति से बैठा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सूद। अब सूद, थ्रोट, अब आप हमेशा के लिए जैसे इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए जब भी अगर ऐसा कोई ऑप्शन है, सूद जो हमेशा हमारे बॉडी पार्ट्स जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं, बॉडी पार्ट्स जिनमें कोई पेन है, कोई किसी तरीके की तकलीफ़ है, उसको सही करने वाला जो वर्ड होता है सूद। जैसे कि सूदिंग इफेक्ट, किसी गाने का आपके कानों में एक सूदिंग इफेक्ट होता है, लाइक दैट, ओके। सो मेरे हिसाब से आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो आई हैव कम अप विद। आई होप यू लाइक इट। यू कैन ऑलवेज कॉमेंट down your views and what better can I do, right? And do like, share and subscribe. Thank you so much.